welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is Section 9 of the Hindu Marriage Act 1955. Guys, so far we have covered Section 1 to Section 8 of the Hindu Marriage Act. If you have not watched my previous videos, guys, please go and watch those videos because guys, those videos are going to form your basis for the understanding of the Hindu Marriage Act 1955. Guys, before we move on, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, you find it easy to grab concepts, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with Section 9, which deals with restitution of conjugal rights. Guys, restitution of conjugal rights का मतलब होता है restoration back of marital rights and obligations. Restitution का मतलब होता है restore back करना किसी भी चीज को, and conjugal rights का मतलब होता है your marital rights and obligations. Since we are dealing with the Hindu Marriage Act, हम marriages के concept के साथ deal करेंगे, तो यहाँ पे हम conjugal rights को भी देखेंगे. It means marital rights and obligations. So guys, it is basically a kind of remedy for a breach of duty to cohabit. अब आपको पता है कि when two people are married, both of these people they have conjugal rights and obligations towards each other. मैंने आपको बताया था कि wife is considered to be ardhangini. Ardhangini means half of a man, and a man is incomplete without a woman. It is only when he gets married that he completes himself. ये हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, हिंदू मैरिजेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि once these two people they have got married, valid marriage अगर इनकी होगी as per Section 5 and 7 of the Hindu Marriage Act, if these two people are validly married, then they have certain rights and obligations towards each other. Those duties towards each other are called conjugal rights and obligations towards each other. They have duty towards their children and towards each other also. So that is called conjugal rights and obligations. So restitution का मतलब होता है कि वो rights and obligations जो है उनको restore back करना, because obviously either of the two people are not fulfilling those conjugal rights and obligations. Being husband and wife, जो काम आपको करना चाहिए in a marriage आप नहीं कर रहे हो, be it husband or wife. यहाँ पे पहली ही लाइन में लिखा है either husband or wife. तो कोई भी इंसान हो सकता है, अगर वो अपने conjugal rights and obligations को पूरा नहीं करता, the other person वो petition फाइल कर सकता है और वो petitioner बन जाएगा, be it husband or wife, और वो क्या कर सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि मेरे जो कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उनको रिस्टोर किया जाए, बिकॉज वी आर टू पीपल इन अ मैरिज, इन अ वैलिड हिंदू मैरिज, एंड वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स ईच अदर, ड्यूटी टू कोहैबिट विद ईच अदर, टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, एंड ईदर ऑफ द टू पीपल आर मेकिंग अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी. आप उस ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हो, सो इट्स अ काइंड ऑफ रेमेडी अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी, जो दुख में है, टू द एग्रीव्ड पार्टी, बी इट हस्बैंड और वाइफ, कि आप क्या कर सकते हो, पिटिशन फाइल कर सकते हो फॉर रेस्टिट्यूशन, रिस्टोरेशन बैक ऑफ योर कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. लेकिन गाइज, एज ऑलवेज, हर एक इंसान रेस्टिट्यूशन की पिटिशन को फाइल नहीं कर सकता कोर्ट में. उसके लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है. वो कंडीशंस क्या हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. पूरी वर्डिंग यहाँ पे मैंने लिखी है सेक्शन 9 की, लेकिन एज ऑलवेज बिफोर वी रीड द बैरक लैंग्वेज मैं आपको अपने तरीके से एक बार समझाऊंगी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की क्या कंडीशंस होती हैं जिसको फुलफिल होना ज़रूरी है. उसके बाद ही ईदर ऑफ द टू पीपल whosoever is the aggrieved party can file a petition in the district court for restitution of conjugal rights. So guys, सबसे पहली important thing is restitution presupposes a valid marriage. सबसे important, first and the foremost, before we read any condition, is that restitution, it presupposes a valid marriage. जब तक एक इंसान की marriage will not be valid enough, तब तक आप restitution नहीं करवा सकते. Conjugal rights and obligations obviously will come into existence when two people are married, and that too a valid Hindu marriage. Only when conditions of Section 5 and all the requisite rites and ceremonies of Section 7 are fulfilled. Section 5 and Section 7 की अगर conditions पूरी होंगी तो हम बोल सकते हैं कि वो एक valid marriage है. अगर वो मैरिज वैलिड होगी उसके बाद ही कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आएंगे, क्योंकि इट इज कॉन्जुगल मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो वो मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑब्वियसली आफ्टर मैरिज ही आएंगे. सो ऑब्वियसली रेस्टिट्यूशन प्रीसपोजेस अ वैलिड मैरिज. अगर आपकी मैरिज विल नॉट बी वैलिड, ऑब्वियसली इट विल बी वॉइड. अगर वो वैलिड नहीं होगी तो वो वॉइड होगी, और अगर वो शादी वॉइड है, इट इज इन फैक्ट नो मैरिज एट ऑल इन द आइज ऑफ लॉ. इट विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड बाय लॉ. तो लॉ कहेगा कि हमारे नजरिए में ये कोई शादी नहीं है. सिंस इट्स नॉट अ वैलिड इनफ मैरिज, इट विल नॉट गिव राइट्स टू कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. जब कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं थे तो उनके रेस्टिट्यूशन की पिटिशन को आप फाइल नहीं कर सकते हो
और कोर्ट आपको डिक्री पास नहीं करेगा इन योर फेवर फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. इट मीन्स द फैक्टम of valid marriage has to be established in front of the court. It means the court has to be affirmatively satisfied. It has to be affirmatively proved in the court of law कि हमारी एक valid marriage हुई थी. All the conditions and ceremonies as per section 5 and 7 of the Hindu Marriage Act were complete and hence it is a valid marriage. जब वो शादी valid होगी तब आप उस पेटिशन को फाइल कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. और वो शादी वैलिड कब होगी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 5 एंड 7 में. उसके बाद गाइज विल बी डिस्कसिंग विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी. अब 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, मैं आपको समझाऊंगी पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट इज दैट रेस्टिट्यूशन प्रीसपोजेस अ वैलिड मैरिज. सेकेंडली यहाँ पे आपको बैरक में देखने को मिलेगा विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर. विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल गाइज देयर इज अ वुमन, शी हैड विड्रॉन हरसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हर हस्बैंड विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, विदाउट एनी जस्ट कॉज, राइट. उसने क्या किया, शी विड्रू हरसेल्फ फ्रॉम हर हस्बैंड्स सोसाइटी. तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एक तरीके से उसने अपने हस्बैंड को डिजर्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया. तो वहाँ पे हस्बैंड फिर पिटिशन फाइल करेगा एंड ही विल बिकम अ पिटिशनर, हिज वाइफ विल बिकम अ रिस्पोंडेंट. वो पिटिशनर बन के पिटिशन फाइल करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि मेरी वाइफ ने क्या किया, शी विड्रू हरसेल्फ फ्रॉम माई सोसाइटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी? ये कुछ कंडीशंस हैं गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं. एज आई हैव टोल्ड यू, अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तभी आप रेस्टिट्यूशन की जो है वो पिटिशन को फाइल कर सकते हो. अब गाइस विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी का मतलब होता है टू पुल योरसेल्फ आउट फ्रॉम कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. विड्रॉल का मतलब होता है टू पुल समथिंग आउट, टू रिमूव समथिंग और टू डिपार्ट. सो दिस इज कॉल्ड विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी. सोसाइटी हियर रेफर्स टू नथिंग बट कोहैबिटेशन. कोहैबिटेशन इज लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ. सो अगर मैं कहूँ विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, जो आपको बैरक में देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है, टू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ कोहैबिटेशन, of living together as husband and wife, or of your marital rights and obligations towards each other. It means to depart yourself, to remove yourself, to pull yourself out of cohabitation, of conjugal rights and obligations, of marital two-in-one-ship. Is it guys? Or of marital togetherness. It means total repudiation, absolute 100% repudiation of cohabitation. जब दो लोग are not cohabiting with each other. Cohabitation is nothing but living together as husband and wife. जब आपकी शादी तो हो रखी है लेकिन you two people are not cohabiting with each other. Cohabiting मतलब you are not living together as husband and wife. जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स हिज वाइफ वो पूरी नहीं कर रहा, और फॉर दैट मैटर जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स हर हस्बैंड वो पूरी नहीं कर रही. इट मीन्स कहीं ना कहीं एक स्पॉट है ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड और वाइफ कि वो अपने कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहे. दे माइट रिफ्यूज टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे माइट रिफ्यूज टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, दे माइट रिफ्यूज टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर, they might refuse to comfort each other or to accompany each other. It means जो एक perfectly valid marriage में होना चाहिए as in usual cases वो नहीं है. तो that can be termed as total repudiation of cohabitation. It means cessation of cohabitation. Cessation मतलब होती है stop करना किसी चीज़ को. जब cohabitation को stop करते हो that can be termed as withdrawal from the society. तो अगर आपको बैरक में देखने को मिलेगा when one person withdraws, अब ये withdrawal कोई भी कर सकता है, either husband or wife. ध्यान रखना सेक्शन नंबर 9 में ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कोई भी इंसान कर सकता है, ईदर हस्बैंड और वाइफ, कोई भी इंसान अपने आप को विड्रू कर सकता है. यानी कि यू हैव पुल्ड योरसेल्फ आउट, यू हैव डिपार्टेड और रिमूव्ड योरसेल्फ from your husband or wife's company, from his comfort or from marital rights and obligations towards each other, of marital two-in-one-ship or of marital togetherness. There is total repudiation of cohabitation or cessation of cohabitation. So इसको आप बोलोगे withdrawal from the society. But guys, a point to be noted is that जो normal wear and tear of marital life होता है ना वो इसमें नहीं आता. नॉर्मली क्या होता है, हर एक कपल में देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स विद ईच अदर. इट मीन्स इट डज नॉट इंक्लूड नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ मैरिटल लाइफ. Withdrawal from society is something more than that. It is not merely normal wear and tear of life. अगर normally नहीं बनती है या conflict रहती है on small issues, that cannot be termed as husband or wife has withdrawn from the other's society. उस withdrawal के लिए what is important is separation of households and not of houses. तो I hope आपको समझ आ रहा है guys. अब ये भी point मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको इसका बता दिया कि withdrawal from society का मतलब क्या है, कि जो आपको करना चाहिए इन a marriage आप नहीं कर रहे हो, that can be termed as cessation of cohabitation और total repudiation of your marital rights and obligations towards each other. उसके बाद guys, a point to be noted is that यहाँ पे merely हम separation of houses की बात नहीं करते हैं.
इट इज समथिंग मोर देन दैट विच इज सेपरेशन ऑफ हाउस होल्ड्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो गाइस, टू पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, दे माइट बी लिविंग अंडर द सेम रूफ in a same room, but still they might not be performing marital rights and obligations. तो वहाँ पे either husband or wife, whosoever is the aggrieved party, they can go to the court of law to file a petition for restitution of conjugal rights. यानी कि एक घर में, एक कमरे में रहते हुए भी वहाँ पे क्या हो सकता है कि वो अपने, they are not living, husband is not living as husband and wife is not living as wife. ईदर ऑफ द टू पीपल, ऐसा हो सकता है कि वो एक घर में रहते हुए भी, यानी कि सेपरेशन ऑफ हाउसेज नहीं है, what is there is separation of households, houses वही हैं, they are living together under the same roof, अपने वो marital home में, girl is living in her marital home along with her husband, लेकिन एक घर में रहते हुए भी, although there is no separation of houses, but there is certainly separation of households, and separation of households is something important for withdrawal from the society. इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए separation of households is important and not of houses. अब बहुत बार गाइस ऐसा होता है कि both husband and wife, especially in today's time, both of them are employed, both of them are working. अब वहाँ पे क्या होगा, those two people are definitely forced to live apart. They cannot live together since both of them are working at different places. They are forced to live apart. But दूर रहते हुए भी they might be fulfilling conjugal rights and obligations towards each other. रहना एक साथ is not important. What is important is separation of households is important. अलग रहते हुए भी वो एक साथ रह सकते हैं, लेकिन एक साथ रहते हुए भी वो अलग रह सकते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ थिन लाइन डिफरेंशिएशन विच इज टू बी अंडरस्टूड. इस चीज़ के लिए, इस कंडीशन का पूरा होने के लिए, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, उसके लिए इंपॉर्टेंट इज सेपरेशन ऑफ houses. Separation of houses is not important. What is important is separation of households. So अलग रहते हुए भी girl might be talking to her husband on daily basis. Husband and wife might be talking to each other. They might be comforting each other and accompanying each other. और जो भी marital rights and obligations towards each other होते हैं, वो दूर रहते हुए भी उसको पूरा कर सकते हैं. So आप ये कहोगे कि when intention, they might not cohabit at all. Since marriage, since day one, they might not cohabit at all. एक साथ शायद वो कभी भी नहीं रहे. But since उनका intention is not to leave your partner, तो वहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि वहाँ पे मुझे restitution of conjugal rights चाहिए. So what is important is intention of the parties is important. अब जहाँ पे parties का intention is not to cohabit, उनका इंटेंशन ही बन चुका है मेंटल एलिमेंट दैट वी विल नॉट कोहैबिट. तो डजंट मैटर वो अलग रहते हैं या वो एक साथ रहते हैं. व्हेन इंटेंशन नॉट टू कोहैबिट इज एस्टैब्लिश्ड, सो इट डेफिनेटली गिव्स अ कॉज ऑफ एक्शन टू द अदर पार्टी कि आप केस फाइल कर सकते हो, पिटिशन फाइल कर सकते हो फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. सो एक साथ रहते हुए भी प्रॉब्लम आ सकती है और अलग अलग रहते हुए भी शायद प्रॉब्लम ना आए. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सेपरेशन ऑफ हाउस होल्ड्स. व्हाट इज पर्टिनेंट इज इंटेंशन नॉट टू कोहैबिट. वंस दैट इंटेंशन नॉट टू कोहैबिट इज एस्टैब्लिश्ड, तो वहाँ पे क्या होगा, it definitely gives a cause of action to the other party, to the aggrieved party obviously, to file a petition in the district court for restitution of conjugal rights. I hope आपको समझ आ रहा है. तो वो कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा कि मेरे कॉन्जुगल यानी कि जो मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है जो हर एक इंसान को आफ्टर मैरिज मिलते हैं, उनको रेस्टिट्यूट करवाया जाए. बिकॉज माई वाइफ इज नॉट working as wife, she is not behaving with me as if she is my wife and she is not fulfilling her marital rights and obligations. तो वहाँ पे कोर्ट उसको डिक्री पास करेगा in favor of the aggrieved party boy against that girl that you have to try and restore your conjugal rights and obligations. So I hope guys आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है. Talking about next important point is reasonable cause or excuse. अब गाइज ये भी एक कंडीशन है कि रीजनेबल कॉज और एक्सक्यूज विच कैन बी टर्म्ड एज जस्ट कॉज, यानी कि जब तक एक इंसान के पास सोसाइटी से विड्रॉ करने का, बीट हस्बैंड और वाइफ, जब तक उसके पास एक रीजनेबल कॉज है, जब तक उसके पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज है कि उसने ऐसा क्यों किया, दैट इज अ वैलिड डिफेंस टू अ पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड एंड वाइफ आर टू पीपल. वाइफ ने क्या किया, हस्बैंड को छोड़ दिया. गाइस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिजर्शन ऑल्सो. डिजर्शन मतलब किसी को डिजर्ट कर देना, अबंडन कर देना. जब हम किसी को अबंडन कर देते हैं, छोड़ देना, यहाँ पे अब छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि उसके घर को वो छोड़ के जाएगी. मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल husband and wife are two people, obviously they have got married and their marriage is a valid enough marriage according to Hindu Marriage Act.
अब यहाँ पे विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि गर्ल जो है वो अपने मैरिटल होम को छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास जाएगी तभी हम कहेंगे कि देयर इज़ विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। हाउसेस का सेपरेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक भी हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सेपरेशन ऑफ हाउस होल्ड्स। एक घर में रहते हुए भी रहते हुए भी दे माइट नॉट फुलफिल देयर मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो वही होता है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि गर्ल हैज़ टू गो आउट ऑफ दैट मैरिटल होम, यानी कि इट इज़ नॉट पर्टिनेंट दैट शी हैज़ टू स्टेप आउट ऑफ हर होम। वो वहाँ पे रहते हुए भी अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकती, जो उसको करना चाहिए एज अ वाइफ वो नहीं कर रही। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जब तक आपके पास एक रीजनेबल कॉज, जब तक आपके पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया, तब तक सामने वाली पार्टी, ग्रीव्ड पार्टी, आपके खिलाफ पिटिशन फाइल करेगी फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। लेकिन गाइज इफ़ यू हैव a genuine reason, if you have a bona fide intention कि मैंने क्यों इसके साथ नहीं रहना या cohabitation नहीं करनी, that can be your valid defense to a petition for restitution of conjugal rights. For example, husband ने petition file करी कोर्ट में, कोर्ट आपको भी पूछेगा, so as long as you have a valid reason, you have a genuine bona fide reason कि आपने क्यों withdrawal किया from other person's society, तो तब तक that reason of yours will be a valid defense and that will protect you। और जो डिक्री आएगी कोर्ट की वो आप ही की फेवर में आएगी क्योंकि आपके पास एक रीज़न है genuine enough। Now guys, what can be that reason genuine enough? What can be that bona fide reason? वो कोई भी reason हो सकता है। For example मैं आपको बताती हूँ, for example guys there's a husband, ठीक है, who recurrently, constantly and continuously वो अपनी वाइफ को फोर्स करता है, she is a vegetarian and उसको फोर्स करता है that you have to drink, you have to eat meat and fish। अब यहाँ पे आप देखो इट्स अ काइंड ऑफ क्रुएलिटी टू योर वाइफ जो आप करोगे, तो वहाँ पे वाइफ हैज़ अ रीजनेबल कॉज, शी हैज़ अ रीजनेबल एक्सक्यूज, शी हैज़ अ जस्ट कॉज ऑफ नॉट कोहैबिटिंग विद यू बिकॉज योर हस्बैंड्स एक्ट, योर हस्बैंड्स कंडक्ट is of such a nature which makes it impossible for you to cohabit with your husband. It raises a kind of reasonable apprehension in your mind. Wife के mind में एक reasonable apprehension create हो रहा है कि my husband is being physically violent with me, he's forcing me, is being cruel to me. Or for example guys, your husband is having a second wife, your husband is having a second wife। अब यहाँ पे क्या होगा, if your husband is having a second wife, तो वहाँ पे आप देखो you have a genuine reason not to cohabit with your husband। Or for example, if a girl's husband makes physical acts of violence, or he is somebody who is addicted to drinks and drugs, which is not only dangerous for him, at the same time it is dangerous for his wife and children also। तो वहाँ पे wife can take a step out और वो ये बोल सकते हैं कि I have a genuine reason not to cohabit with my husband because उसके कुछ acts, उसका कुछ conduct इस तरीके का है कि which makes it difficult or impossible for me to cohabit with him, to live with him in a life, in a marital life। Obviously guys, marital relationship भी तभी continue होगा when both the people are correct on their parts, they have to be right। When husband is somebody who is addicted to drinks and drugs, obviously it raises a mental apprehension, reasonable apprehension in the mind of the wife कि कल को मेरा क्या होगा, I'm not safe with this person, neither are my children safe। तो वहाँ पे she can step out and that cannot be termed as withdrawal from his society। वहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि she withdrew herself। Although she withdrew herself from marital rights and obligations, although she stopped cohabiting with her husband, but she had a reasonable cause for doing that। It means any act, any conduct on the part of either husband or wife which makes it impossible for the other person to cohabit with you can be termed as a reasonable cause or excuse। If it is, if it causes a reasonable apprehension in your mind, so that is a reasonable cause enough। समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेव, समथिंग विच इज़ वेरी वेटी एंड कन्विंसिंग, जिससे कोर्ट कन्विंस हो सकता है कि हाँ डेफिनेटली, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी वो कुछ इस तरीके की एग्जांपल्स है कि जहाँ से कोर्ट भी कन्विंस होता है कि येस इट इज़ अ रीजनेबल कॉज फॉर द अदर पर्सन नॉट टू कोहैबिट विद द अदर पर्सन। आई होप यू आर गेटिंग इट। या फिर गाइज हम देखेंगे बहुत व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिवोर्स, जब हम सेक्शन 13 में डिवोर्स की बात करेंगे या सेक्शन 10 में इसके बाद जुडिशियल सेपरेशन की बात करेंगे, या फिर हम सेक्शन 5 में डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 5 को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लॉज 1, 4 एंड 5। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि देर आर सर्टन ग्राउंड्स फॉर मैरिटल कॉजेज, कुछ ऐसे मैरिटल कॉजेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल दी है कि फॉर एग्जाम्पल अ हस्बैंड इज हैविंग अ सेकंड वाइफ, जब हस्बैंड की सेकंड वाइफ होती है इट्स डेफिनेटली मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर हिज फर्स्ट वाइफ टू कोहैबिट विद हिम। तो वहाँ पे वाइफ के पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज है टू विड्रू हरसेल्फ फ्रॉम हर हस्बैंड्स सोसाइटी। अब वहाँ पे आप देखो इट इज़ डेफिनेटली अ रीजनेबल कॉज। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हस्बैंड आपके साथ क्रुएलिटी करता है, एडल्ट्री कमिट करी है उस इंसान ने,
ये सारे के ग्राउंड्स हैं फॉर डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, जिसको हम स्लोली एंड स्टेडीली डिस्कस करेंगे। ये सारे जो ग्राउंड्स होते हैं ना मैट्रिमोनियल कॉजेज़ के, ये सारे ग्राउंड्स भी रीजनेबल एक्सक्यूज़ होते हैं अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने एडल्ट्री कमिट करी, हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से क्रूअलिटी करते हैं, या फिर आप कह लो कि आपकी जो शादी है, ठीक है, द अदर पर्सन इज योर स्पिंडर। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ आर टू पीपल बट दे आर स्पिंडर्स टू ईच अदर और दे फॉल विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इट मीन्स इन अ वे और द अदर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द सेम ब्लड लाइन। वहाँ पे भी गाइज इवन सेक्शन 5 क्लॉज 1, 4 एंड 5, अगर ये 3 कंडीशंस भी पूरी होती है ना, वहाँ पे भी आपके पास एक रीजनेबल कॉज है और एक एक्सक्यूज है टू विड्रू फ्रॉम अदर पर्सन्स सोसाइटी। इट मीन्स ऑब्वियसली गाइज, अगर फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 people, husband and wife are spinders of each other or they fall within the degrees of prohibited relationship, it means in a way or the other they relate to each other by the same blood line, और हिंदू मैरिज के तहत वो शादी नहीं कर सकते unless their custom permits, I've told you, unless their custom allows them, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वो शादी नहीं कर सकते। अब वहाँ पे देखो इट इज़ इन फैक्ट नो मैरिज एट ऑल, तो जब वो कोई मैरिज ही नहीं है तो वहाँ पे कोई कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं हैं। तो जब कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे तो अगर आप विड्रॉ भी कर रहे हो अपने आप को फ्रॉम अदर पर्सन्स सोसाइटी, नोबडी कैन क्वेश्चन यू दैट एंड इट विल फॉर्म, इट्स अ काइंड ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज दैट यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम अदर पर्सन्स सोसाइटी। तो कहने का मतलब है कि रीजनेबल कॉज कोई भी बन सकता है। जो आपके ग्राउंड्स हैं फॉर डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, जो आपको धीरे धीरे समझ आएंगे, वो भी सारे के सारे जो ग्राउंड्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, रीजनेबल एक्सक्यूज बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, देयर आर 2 people, हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ ऑफ देम वर हिंदूज व्हेन दे गॉट मैरिड। अब नियर फ्यूचर में क्या हुआ, वन ऑफ देम कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन, उसने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो जो ये इंसान हिंदू अभी भी है, एक इंसान तो नॉन हिंदू हो चुका है, जो अभी भी इंसान हिंदू है, बी इट हस्बैंड और वाइफ, उस इंसान के पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज है कि अदर पर्सन हैज कन्वर्टेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू सम अदर रिलीजन एंड आई डू नॉट वांट टू गिव अप माय फेथ इन हिंदुइज्म, सो आई एम विड्रॉइंग माई सेल्फ फ्रॉम अदर पर्सन्स सोसाइटी। तो ये भी जो कन्वर्जन का पॉइंट है ना, ये भी इट्स अ काइंड ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज, इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट कॉज एंड इट विल डेफिनेटली एक्ट एज योर डिफेंस कि उसने कन्वर्जन कर ली है, सामने वाले ने कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन, तो वो भी क्या होगा आपका एक इट विल बी अ काइंड ऑफ डिफेंस टू अ पर्सन, वो एक डिफेंस होगा टू अ पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो जब पिटिशन फाइल की जाएगी, जो इंसान पिटिशनर होगा उसके फेवर में फिर डिक्री पास नहीं होगी, इट विल बी पास इन योर फेवर क्योंकि यू हैव अ रीजनेबल कॉज और एक्सक्यूज। तो यही लिखा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में कि जब तक एक इंसान के पास रीजनेबल कॉज और एक्सक्यूज है तब तक वो कॉज, वो एक्सक्यूज आगे आएगा एंड इट विल एक्ट एज अ डिफेंस, फॉर डिफेंस टू अ पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। लेकिन गाइज अगर आपके पास विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और एक्सक्यूज अगर आप करते हो तो वहाँ पे फिर क्या होगा, पिटिशन का जो डिक्री है इट विल डेफिनेटली बी इन फेवर ऑफ द पिटिशनर। उसके बाद गाइज वी हैव इंपॉर्टेंट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। 3 पॉइंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड restitution presupposes a valid marriage. Second is withdrawal from the society of the other. Third is reasonable cause or excuse. Fourth is burden of proof. बर्डन ऑफ प्रूफ का इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन है। इफ यू ओपन द बेयर एक्ट आपको सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा है बर्डन ऑफ प्रूफ। गाइस इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है यानी कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो होता है वो सबसे पहला इनिशियल बर्डन ऑफ डिस्चार्जिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पिटिशनर। जिसने पिटिशन फाइल करी है कोर्ट में जाके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो इंसान पिटिशनर बना है, ऑब्वियसली द एग्रीव्ड पार्टी विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और वही पिटिशनर होगा। सबसे पहला इनिशियल बर्डन पिटिशनर पे है कि उसको कोर्ट में जाना है और उसको पिटिशन फाइल करनी है और कोर्ट में ये बोलना है कि द अदर पर्सन हैज़ विड्रॉन फ्रॉम माई सोसाइटी। सबसे पहले पिटिशनर विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, ही विल फाइल अ पिटिशन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वो कहेगा कि सो एंड सो पर्सन, बी इट हस्बैंड और वाइफ, हैज़ विड्रॉन फ्रॉम माई सोसाइटी। जब वो पिटिशन फाइल करेगा तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, कोर्ट विल रेज अ प्रिजम्पशन। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि येस द अदर पर्सन हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और एक्सक्यूज। अब इस चीज़ को कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया। नाउ द सेकेंडरी बर्डन इज ऑन द रिस्पॉन्डेंट। रिस्पॉन्डेंट पार्टी पे रहेगा, दूसरी पार्टी पे रहेगा बर्डन, सेकेंडरी बर्डन उस पे रहेगा कि कोर्ट ने तो अब क्या कर लिया, प्रिज्यूम कर लिया ना, यू हैव गॉट टू ट्राई एंड रिबट दैट प्रिजम्पशन। आपको उसका रिबटल करना है और आपको कोर्ट में प्रूव करना है कि आई डेफिनेटली विड्रू माई सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, लेकिन इट वॉज नॉट विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और एक्सक्यूज। आई हैव अ जस्ट कॉज एंड आई हैव अ जस्ट एक्सक्यूज कि क्यों मैंने विड्रॉल करा, और आपको कोर्ट को एफर्मेटिवली सेटिस्फाई करना होगा, प्रूव करना होगा समहाउ कि सो एंड सो इज माई रीजन
and it should stand as a defense to a petition for restitution of conjugal rights that had been petitioned by the petitioner in the district court. I hope guys आपको समझ आ रहा है. तो burden of proof जो है, सबसे पहला burden of proof जो है वो किस पे रहता है? petitioner पे रहता है. petitioner कौन होगा? जो petition फाइल करेगा district court में. और पिटिशन कौन फाइल करेगा? जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, बीट हस्बैंड और वाइफ, जिसके साथ गलत हुआ है वो इंसान कोर्ट में जाएगा. वो कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल करेगा कि द अदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने पिटिशन फाइल करी तो वो कहेगा कि वाइफ ने मेरे साथ क्या किया है, शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग हर कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इसीलिए मेरे फेवर में एक डिक्री पास की जाए फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बिकॉज शी withdrew herself from my society without any reasonable cause or excuse. अब कोर्ट ने इस चीज़ को प्रिज्यूम कर लिया कि हाँ ऐसा हुआ है. अब यहाँ पे इस प्रिजम्पशन को रिबटल करना होगा उस वाइफ को हु इज़ रिस्पॉन्डेंट इन दिस केस, और उसको कोर्ट को एफर्मेटिवली सेटिस्फाई करना होगा कि आई डेफिनेटली विड्रू माई सेल्फ, आई डेफिनेटली पुल्ड माई सेल्फ आउट ऑफ माई हस्बैंड्स सोसाइटी, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए बिकॉज आई हैव अ रीजनेबल कॉज और एक्सक्यूज़. अब रीजनेबल कॉज और एक्सक्यूज़ क्या होगा और वो किस तरीके से कोर्ट में बताया जाएगा वो डिपेंड करता है फ्रॉम केस टू केस, राइट. अब वहाँ पे रीजनेबल कॉज कोई भी हो सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बीट हस्बैंड्स कंडक्ट, बीट हिज एक्ट और एनी काइंड ऑफ ग्राउंड फॉर मैट्रिमोनियल कॉज, कोई भी हो सकता है रीजनेबल कॉज. सो इस तरीके से गाइस बर्डन ऑफ प्रूफ, इनिशियल बर्डन पिटिशनर पर रहेगा, सेकेंडरी बर्डन टू डिस्चार्ज वो किस पे रहेगा? रिस्पॉन्डेंट पे रहेगा. अब गाइस उसके बाद आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी सेक्शन 9 में, विच इज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है नो लीगल ग्राउंड. ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव टू मार्क इट डाउन, क्योंकि व्हेन विल बी डिस्कसिंग बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ, क्या होता है कि एक इंसान को मैट्रिमोनियल रिलीफ मिलता है. अब ये सारे मैट्रिमोनियल रिलीफ्स हैं गाइस, मैंने आपको बताया था बिगिनिंग में कि यू हैव बोथ द पीपल हैव अ ड्यूटी टू कोहैबिट विद ईच अदर, लेकिन जब उस ड्यूटी का वो ब्रीच करते हैं, वो कोहैबिटेशन नहीं करते हैं, तो एक रेमेडी अवेलेबल होती है, और वो रेमेडी का क्या नाम है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. सो इट्स अ काइंड ऑफ मैट्रिमोनियल रिलीफ दिया जाता है कोर्ट की तरफ से एग्रीव्ड पार्टी को. लेकिन गाइस देयर आर सर्टेन बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ. आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, इट मीन्स आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री आपके फेवर में पास नहीं होगी, क्योंकि देयर आर सर्टन बार्स टू इट. अब वो बार्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. बार्स में जैसे आते हैं कॉन्डिनेशन आता है, कल्यूजन आता है, कॉनिवेंस आता है, एक्सेसरी आता है, अभी आपको नहीं समझ आएगा. सो व्हेन विल बी डिस्कसिंग बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ अंडर सेक्शन 23 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, वहाँ पे हमें समझ आएगा इस पॉइंट को. तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि ये जो सारा है ना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये उस इंसान के फेवर में, फॉर एग्जाम्पल पिटिशनर के फेवर में पास हो जाएगा अगर वो कोर्ट में ये बता दे कि विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज he or she, be it husband or wife, had withdrawn herself or himself from other person's society. जब ये दोनों conditions पूरी हो जाएंगी ना, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जिस इंसान ने पिटिशन फाइल करी है ना, उस इंसान की गलती नहीं होनी चाहिए, उस इंसान की कोई भी खुद की कल्यूशन नहीं होनी चाहिए. कहने का मतलब है कि आपके पास कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जहां से पिटिशनर की खुद की गलती पॉइंट आउट हो. अगर पिटिशनर की खुद की भी गलती है, यानी कि अब ऑब्वियसली देखो हस्बैंड इज इल ट्रीटिंग हिज वाइफ, वो फिजिकल एक्ट्स ऑफ वायलेंस करता है, क्रुअलिटी करता है, उसको ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है बीइंग अ वेजिटेरियन, या फिर उसको मीट या फिश खाने के लिए फोर्स करता है, या फिर उसने खुद ही एक सेकेंड वाइफ रखी है. तो यहाँ पे आप देखो हस्बैंड की खुद की गलती है और वाइफ क्या कर रही है, शी इज विड्रॉइंग हरसेल्फ फ्रॉम हर हस्बैंड्स सोसाइटी. यहाँ पे आप देखो बॉय इज समबडी हु हिमसेल्फ इज एट फॉल्ट, और गर्ल के पास एक रीजनेबल कॉज और एक्सक्यूज है टू विड्रू हरसेल्फ फ्रॉम हर हस्बैंड्स सोसाइटी. तो यहाँ पे ड्यू थिंक कि वो पिटिशन जो है उसकी जो डिक्री है वो हस्बैंड के फेवर में जाएगी? नहीं जाएगी. उसका रीजन क्या है? क्योंकि ही हैज़ अ लीगल ग्राउंड कि उसकी फेवर में वो डिक्री क्यों नहीं गई, क्योंकि उसकी खुद की गलती है. ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग. हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा कि यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग. यहाँ पे गलती भी आप ही कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरी ही फेवर में डिक्री पास कर दी जाए तो ये गलत होगा. इट मीन्स यही कुछ लीगल ग्राउंड्स होते हैं जो हम सेक्शन 23 में डिस्कस करेंगे कि लीगल ग्राउंड कोई नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी लीगल ग्राउंड बनता है तो वहाँ पे आपकी फेवर में डिक्री पास नहीं होगी. वो लीगल ग्राउंड्स क्या है उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन स्टिल इन डिटेल हम सेक्शन 23 में डिस्कस करेंगे. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 9. इसकी हम बैरक लैंग्वेज एक बार रीड कर लेते हैं और उसके बाद गाइज विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9. तो इट्स क्वाइट शॉर्ट, लेकिन उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले लेट्स हैव अ रीडिंग ऑफ सेक्शन 9 विच इज when either the husband or the wife, either husband or wife, as I've already told you, बार बार बताया कि husband और wife कोई भी हो सकता है. when either husband or the wife
has without any reasonable cause or excuse withdrawn from the society of the other. Withdrawal means you have pulled yourself out. Not ये ज़रूरी नहीं है that you have to step out of your marital home. घर छोड़ना ज़रूरी नहीं है. What is important is separation of households. So withdrawn from the society of the other, the aggrieved party, obviously the petitioner, aggrieved party, be it husband or wife, may apply, उनकी मर्जी है, may, obligatory नहीं है, may apply by petition, obviously वो petition file करेंगे to the district court में वो petition file करेंगे for restitution of conjugal rights, that please help me to restore back my conjugal rights and obligations जो कि lost हो चुके हैं क्योंकि my husband or wife as the case में भी उसको पूरा नहीं कर रहे, for restitution of conjugal rights and court on being satisfied of the truth of the statements made. आपने जो भी statements रखी, obviously guys when two parties will come to the court of law वो बहुत कुछ बोलेंगी, तो court has to be satisfied. मैंने आपको बार बार बताया कि that you have to affirmatively satisfy the court कि so and so is the case. And जब तक court आपकी बातों से satisfied नहीं होगा, जब तक court को ये नहीं लगेगा कि जो आपने statements बोली वो truth enough हैं, तब तक कोर्ट आपके फेवर में या अगेंस्ट में केस नहीं लेगा. सो वहीं यहाँ पे लिखा है, आई एम द कोर्ट बीइंग सैटिस्फाइड, affirmatively satisfied of the truth of the statements, you know, kept upon either by husband or wife. दोनों साइड्स ने जो आपकी स्टेटमेंट्स रखी, मेड इन सच अ पिटिशन, जो भी स्टेटमेंट्स पिटिशन में लगाई गई है पिटिशनर के द्वारा, देन रिटन स्टेटमेंट बाय द रिस्पोंडेंट, तो जो भी है कोर्ट हैज टू बी अफर्मेटिवली सैटिस्फाइड एंड that there is no legal ground why the application should not be granted. There is no legal ground why the application should not be granted. अगर legal ground होगा तो वहाँ पे application will not be granted. When there is no legal ground कि application क्यों grant नहीं करनी है, कोई cause ही नहीं है, अगर कोई कॉज नहीं होगा देन कोर्ट में डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. लेकिन अगर कोई ना कोई लीगल ग्राउंड निकल के आया, फॉर एग्जांपल हस्बैंड हिमसेल्फ इज एट फॉल्ट, आपकी खुद की गलती है, इट मींस यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग, तो यहाँ पे एक लीगल ग्राउंड निकल के आया. और इसी के जैसे बहुत सारे लीगल ग्राउंड्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, हम सेक्शन 23 में डिस्कस करेंगे. तो अगर कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है, कोर्ट को दिखता कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं दिखता कि हमें क्यों इस पिटिशन को डिक्री को पास करना चाहिए, तो वो करेंगे पास. और अगर कोर्ट को लगता है कि देयर इज कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे कोई ना कोई लीगल ग्राउंड अगर निकल के आएगा, देन कोर्ट शैल नॉट पास द डिक्री इन योर फेवर. और अगर सब कुछ ठीक लगता है, स्टेटमेंट्स जो पार्टीज ने रखी वो बिल्कुल ट्रूथ है, कोर्ट इज सैटिस्फाइड इनफ, अफर्मेटिवली सैटिस्फाइड है, पार्टीज ने अपने अपने केसेस को रखा, एंड there is no legal ground why the application should not be granted, the court may decree restitution of conjugal rights in favor of either the petitioner or the respondent as the case may be. So I hope guys I am very well done with section 9. अब हम डिस्कस करते हैं constitutional validity of section 9. So guys there was a case named T. Saritha versus Venkat Subhaiya. इस केस में क्या हुआ था guys, for the very first time constitutional validity of section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 was questioned. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन भी क्यों किया गया था गाइस, क्योंकि ये कहा गया कि जो सेक्शन 9 है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ये कहीं ना कहीं मैरिटल प्रिवेसी के साथ डील करता है. और जब हम कोर्ट को इन्वॉल्व करते हैं इस चीज़ में, इट इज़ वायलेटिव ऑफ राइट टू प्रिवेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी गारंटेड फॉर बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये कहा गया कि सेक्शन 9 जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड है, इनवैलिड है. इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इस केस में क्या हुआ था, टी सरिता वर्सेस वेंकट सुभैया में जो सिंगल जज बेंच थे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इस चीज़ को अपहेल्ड किया और कोर्ट ने कहा कि दिस सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज़ वेरी सेवेज एंड बार्बरस रेमेडी, और इस चीज़ को हम डेफिनेटली बोलते हैं कि इट इज़ वायलेटिव ऑफ राइट टू प्रिवेसी एंड हेंस कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड. तो इस केस में एक तरीके से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास कर दी कि जो आपकी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज क्वाइट सेवेज एंड अ बार्बरस रेमेडी विच इज़ वायलेटिव ऑफ right to privacy and human dignity provided for and guaranteed for by Article 21 of the Indian Constitution, and hence it is constitutionally void. एक बार के लिए ऐसा कह दिया गया. But guys, what happened is in yet another case which is Harvinder Kaur versus Harmandir Singh Chaudhary. इस केस में क्या हुआ गाइस, कोर्ट ने कहा दोबारा से दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस चीज़ को रिव्यू किया और ये कहा कि आई एम डिसेंटिंग माई सेल्फ विद द ओपिनियन which was put forward by the single judge bench in the of the Andhra Pradesh High Court in T. Saritha versus Venkat Subhaiya, कि पुराने केस में जो जजमेंट आई मैं उसको डिसेंट करता हूँ बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा इस केस में हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी में
कि इफ वी लुक इनटू द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 9, अब हमें समझना होगा कि सेक्शन 9 इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड, इट इज नॉट वायोलेटिव ऑफ मैरिटल प्रिवेसी, इट इज नॉट वायोलेटिव ऑफ राइट टू प्रिवेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी गारंटीड फॉर बाय आर्टिकल 21। उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा कि इफ वी लुक इनटू द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, इट इज टू प्रिजर्व मैरिज। अब आप देखो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या है कि दो लोग कोशिश करते हैं कि हमारे वैसे तो जो है वो कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस खत्म हो चुके हैं, दे आर लॉस्ट समवेयर, एंड कोर्ट by passing a decree of restitution of conjugal rights in a way or the other is trying to bring those people together. जो estranged parties हैं जिनके relationship थोड़े खराब हो चुके हैं, court is trying to bring about cohabitation between them, to bring about consortium and cohabitation between them so that they can try and live together amicably all over again. तो कोर्ट की कोशिश होती है to preserve a marriage and not to divorce those people. कहीं ना कहीं गाइस ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक साइड आपको डिवोर्स आता है जहाँ पे हम पार्टीज को अलग करने की कोशिश करते हैं, और एक साइड आता है दीज मैट्रिमोनियल रिलीफ्स। तभी तो इनको मैट्रिमोनियल रिलीफ्स कहा जाता है कि इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ विच इज गिवन टू बाय द पार्टीज। पार्टीज को दिया जाता है, ये रिलीफ दिया जाता है कि यू कैन ट्राई एंड प्रिजर्व योर मैरिज। इट मीन्स हमारा फेथ मैरिजेस को ब्रेक करने में नहीं है, बिकॉज गाइस मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन वेरी सेक्रामेंट इवन टुडे। हिंदू मैरिजेस बहुत ही ज़्यादा, नॉट ओनली हिंदू मैरिजेस, लेकिन मैरिजेस आर वेरी सेक्रामेंट इवन इन टुडेज टाइम। तो यहाँ पे हमारी कोशिश इज टू प्रिजर्व दोज मैरिजेस, टू ब्रिंग अबाउट कंसोर्टियम एंड कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज सो दैट दे कैन लिव टुगेदर एमिकेबली ऑल ओवर अगैन जैसे वो पहले रहते थे। तो मैरिजेस को ब्रेक करने का हमारा इंटेंशन नहीं होता। तो आप अगर ये कहो कि सेक्शन 9 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड जस्ट बिकॉज ये मैरिटल प्रिवेसी को डिस्टर्ब करता है या फिर ये ह्यूमन डिग्निटी को खराब करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वी हैव टू लुक इनटू द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेक्शन 9। हिंदू मैरिजेस में इसका ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग अबाउट कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज। सो इट्स अ काइंड ऑफ फैलेसी, इट्स अ काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन ये कहना कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड। कई इवन ऐसा भी कहा गया था कि restitution of conjugal rights is the starkest form of governmental invasion of marital privacy. Can you just believe? Starkest form of governmental invasion of marital privacy. लेकिन it's a fallacy, it's a misconception जो even Supreme Court ने भी इस चीज़ को क्या किया, upheld किया है कि we need to look into the objective. यानी कि कहते हैं कि सेक्शन 9 इज अ कोडिफिकेशन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग लॉ। एक प्री एग्जिस्टिंग लॉ है, ऑलरेडी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कोडिफिकेशन है सेक्शन 9। बिकॉज गाइज ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ना, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट इज जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ व्हाट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। मैरिजेस बहुत पुराने टाइम से हैं, तभी तो कस्टम्स दे प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द हिंदू मैरिज एक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि इट्स मेरली अ कोडिफिकेशन। स्टैट्यूट ने मैरिजेस को क्रिएट नहीं किया है, मैरिजेस आई और स्टैट्यूट इज जस्ट अ कोडिफिकेशन। तो कहने का मतलब है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इज वेरी मच इनहेरेंट, ऑलरेडी हमारे पास है ये। तो वहाँ पे अगर हम कहें कि इसने क्रिएट किया है सेक्शन 9 ने, तो वो चीज़ नहीं है। तो सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड बिल्कुल भी नहीं है। वी नीड टू लुक इनटू द ऑब्जेक्टिव। और हम बहुत ही पुराने कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ कोडिफाई किया है, उससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है। और इस चीज़ को ऐसा कहना कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड या मैरिटल प्रिवेसी को डिस्टर्ब करता है, ये सही नहीं होगा। एंड दिस इज द करंट व्यू कि दिस सेक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्वेश्चन ज़रूर हुआ था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। एंड गाइज नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बहुत ही ब्रीफिंग बताऊंगी, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वो पॉइंट ये है गाइस कि व्हेन अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज पास्ड अगेंस्ट अ पर्सन, तो जिस इंसान के अगेंस्ट उस डिक्री को पास किया गया है, ऑब्वियसली इफ दैट पर्सन हैज हैड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ ओबेइंग दैट डिक्री, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि यू कैन गो बाय दैट डिक्री, यू हैव गॉट टू ट्राई एट लीस्ट to restore conjugal rights and obligations, but despite that fact you are willfully disobeying that decree। तो guys वहाँ पे क्या होगा, जो आपकी डिक्री पास की गई है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दैट डिक्री शैल बी एनफोर्स्ड बाय अटैचमेंट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स प्रॉपर्टी। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आया, आई विल बी मेकिंग इट क्लियर। इसमें क्या होता है गाइस, फॉर एग्जांपल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री को पास कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो कि हस्बैंड एंड वाइफ आर द टू पीपल। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड इज द एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ वाइफ ने गलत किया।
वाइफ ने क्या किया, उसने अपने मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया. शी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. शी रिफ्यूजेस टू कंफर्ट एंड कंपनी हर हस्बैंड एंड शी रिफ्यूजेस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद विद हर हस्बैंड. अब यहाँ पे क्या है कि वो एज अ वाइफ वो कोई काम नहीं करती. हस्बैंड विल, ही इज द अग्रीव्ड पार्टी, ही विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, ही विल फाइल अ पिटिशन एंड विल बिकम अ पिटिशनर. वाइफ इज द रिस्पोंडेंट इन दिस केस. अब यहाँ पे आप देखो कोर्ट ने क्या किया, ऑन बीइंग सैटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट्स बीइंग मेड एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द डिक्री शुड नॉट बी ग्रांटेड. ये सब कुछ देखने के बाद कोर्ट ने क्या किया, पिटिशनर की फेवर में डिक्री को पास कर दिया, यानी कि बॉय की हस्बैंड की फेवर में डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को पास कर दिया. अब यहाँ पे आप देखो गाइस कि जो गर्ल है, she has had a reasonable opportunity of obeying it. At least she should give it a try. She should at least try it once to restore her conjugal rights and obligations. She has had a reasonable opportunity of obeying it, but जानबूझ के willfully she is showing disobedience to court's decree. उसको वापस से वो फुलफिल करने की या रिस्टोर करने की कोशिश नहीं कर रही. तो वहाँ पे गाइस क्या होता है, जस्ट एज टू क्रिएट एन इंड्यूसमेंट टू द कोर्ट्स डिक्री, ताकि एटलीस्ट, अदरवाइज लोगों को कोर्ट की डिक्री का डर ही नहीं होगा. पीपल विल नॉट गो बाय इट, दे विल नॉट ओबे इट. जस्ट एज टू इंड्यूस द अदर पर्सन की कोर्ट की डिक्री को आपको मानना है, तो जिस इंसान के अगेंस्ट उस डिक्री को पास किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी, इफ ही और शी पोजेसेस एनी, उसको अटैच कर लिया जाता है. सो इट्स अ वे ऑफ एनफोर्सिंग कोर्ट्स डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. उसको एनफोर्स किया जाता है बाय अटैचमेंट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स प्रॉपर्टी. उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है. नॉट ओनली रिस्पॉन्डेंट, हूसोएवर इज द पर्सन जिसकी अगेंस्ट वो डिक्री पास हुई है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है. उसका गाइस, दिस इज द ओनली सैंक्शन, दिस इज द ओनली फाइनेंशियल सैंक्शन जो कि लगाया जा सकता है, और वो यही है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, जस्ट एज टू क्रिएट इंड्यूसमेंट. सो गाइस, इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप देखो इन द नटशेल, वो यही है कि कोर्ट कहीं ना कहीं इज ट्राइंग टू प्रिजर्व द मैरिज. कोर्ट इज ट्राइंग कि ये जो मैरिटल ब्रेकअप है वो ना हो, और मैरिज विच इज़ अ वेरी सेक्रमेंट एंड अ प्योर इंस्टीट्यूशन सिंस एजेस वो उसी तरीके से रहे. बिकॉज गाइज, मैरिजेस का टूटना इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. इट इज़ नॉट गुड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज. सो कोर्ट्स ऑलवेज ट्राई, स्पेशली अंडर सेक्शन 9 ये मैरिटल रिलीफ्स होते हैं. सो कोर्ट्स ऑलवेज ट्राई कि मैरिजेस जो है वो उसी तरीके से प्रिजर्व रहे. तो मैरिजेस को प्रिजर्व करने के लिए और सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की डिक्री को इन्फोर्स करने का, ये सामने वाले को इंड्यूस करने का एक तरीका है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है इफ ही और शी पोजेसेस एनी, एंड दिस इज द ओनली फाइनेंशियल सैंक्शन जो कोर्ट लगा सकती है. जस्ट एज टू क्रिएट इंड्यूसमेंट कि सामने वाला एटलीस्ट सोचेगा दैट माई प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड, ही और शी माइट गिव इट अ ट्राई एंड ट्राई टू रिस्टोर कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. इज इट? सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 9. सबसे पहले हमने सेक्शन 9 के इंपॉर्टेंट कंडीशंस को डिस्कस किया था. उसके बाद आई टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड, और उसके बाद हमने एक छोटे से पॉइंट को डिस्कस किया विच वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो गाइज, आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज ऑन हिंदू मैरिज एक्ट. टिल देन गाइज, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय.